So we'll continue with standard hydrogen electrode, okay, in the second part of it. This is basically covering all the basic stuff, how to calculate cell potentials and stuff. So we're going to get more information about cell potential. We'll mostly be talking about galvanic cell. Remember that cell? Okay, in the galvanic cell, you have a spontaneous reaction and that actually generates energy, isn't it? That's the galvanic cell. So those kind of cells, and what happens with the electrode potential, how, because that is something that we can actually change, and that's what that's the important thing. You can generate electricity using galvanic cell. So electrode potential, let's say in order to measure a standard reduction potential, we want to measure a standard reduction potential of a half cell that has metal ion combination. Okay, so you have a metal ion and metal cell, that is a half cell. Okay, this is a half cell, and we set up a galvanic cell. Galvanic cell is set up in this particular manner. You have metal that is dipped in its solution, all right, separated by a salt bridge. Then you have a platinum electrode that is so this is basically a standard hydrogen electrode. Okay, this is standard hydrogen electrode. We are using standard hydrogen electrode as cathode. Okay, how do I know? Because it is being written on the right hand side of the cell notification. Okay, so this is how we write the cell, whatever the cell thing, and whatever is written on the left hand side is anode by rule. Basically, we need to write anode on the left hand side and cathode on the right hand side. So this is your anode. Understood? All right. Now anode is written as oxidation. Anode is written as oxidation basically, and cathode is written as reduction. Okay, and you can see that if you go in this direction, that is an oxidation reaction, isn't it? And two electrons are actually given out, and these electrons will travel to the platinum electrode. Okay, and when it does that, it will also cause reduction at the cathode. Okay, and this is the reduction reaction. Okay, now platinum here is actually inert electrode. Oops. Platinum here is the inert electrode. It is not taking part in the reaction. It is simply collecting the electrons that are liberated by anode. Okay, so it is not doing anything in the reaction, simply collecting the electrons, and it is giving out to the H plus ion. Okay, and H plus ion, by collecting the electron, gets converted to hydrogen, and hydrogen combines to give you hydrogen gas. So all the cells are written in this manner. Basically, you can see the reactions. If you look at the reactions, जो reaction है, sorry मैं जब से English में ही बात कर रहा था, I didn't realize जो reaction है, it is going from left to right. ठीक है ना, ये reaction left to right जा रही है, ये भी reaction left to right जा रही है. So दोनों reaction left to right ही जा रही है basically. Okay, so this is a oxidation reaction and this is a reduction reaction, and from that you can also tell कि ये anodic cell है और ये cathodic cell है. Understood? Is that clear? Yes sir. Yes sir. Okay. Alright. तो इस सेल के लिए ओवरऑल रिएक्शन अगर अपने को लिखना है, ठीक है ना, सो इट इज गोइंग टू बी M2M प्लस एंड H प्लस टू H2. ये अपनी ओवरऑल रिएक्शन रहेगी. ठीक है, इसका अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है, सेल पोटेंशियल, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल का, पूरे सेल का पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल निकालना है तो देखो क्या हो रहा है कि जो एनोड है दैट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू द कैथोड. बराबर है ना, ऐसे ही हो रहा है. ओके, एनोड कैथोड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होनी चाहिए और कैथोड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए. Isn't it? एनोड की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और कैथोड की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होनी चाहिए. मतलब ये हो गया कि इसको ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल होना चाहिए इसमें. ओके, सो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑलराइट, और कैथोड में रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए. ओके, अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इस सेल का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा. और इस सेल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो भी सेल का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा. इजंट इट? तो दोनों, पूरे सेल का अगर पोटेंशियल मेरे को लेना है तो ये क्या हो जाएगा,
सम ऑफ दीज टू पोटेंशियल्स। ओके, तो मैं लिखता हूं इसको, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ई बोले तो पोटेंशियल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज सेल पोटेंशियल, राइट, इक्वल टू सम ऑफ एनोड पोटेंशियल, ओके, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सम ऑफ और प्लस कैथोड पोटेंशियल जहां पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन को रिडक्शन के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। जब मैं ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो साइन चेंज करता हूं। ये अपने को मालूम है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इजंट इट। जो भी अपने को पोटेंशियल्स दिए, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, राइट, इवन दो रिडक्शन होता है नहीं होता है। अब मेरे को अगर किसी सेल के लिए ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखना है तो मेरे को वो रिएक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी, उल्टी करनी पड़ेगी। और अगर मैं रिएक्शन उल्टी कर रहा हूं तो उस सेल का पोटेंशियल भी मेरे को अपोजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूं, इसी ऑक्सीडेशन सेल को रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है ना। और इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं, सो इट बिकम्स माय रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। देखो अभी जो वैल्यूज दी है अपने को एक्टिविटी सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सारी की सारी रिडक्शन की वैल्यू है। तो मेरे को क्या करना है, दो का सीधा सीधा डिफरेंस निकालना है। तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज गोइंग टू बी द सेल पोटेंशियल, इजंट इट। मेरे को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आई कैन सिंपली यूज रिडक्शन पोटेंशियल। और हम यही करते हैं बेसिकली, हम लोग जब भी सेल पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, हम रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड। अंडरस्टूड? कैथोड अपना राइट में आ गया और एनोड अपना लेफ्ट में आ गया, तो कैथोड माइनस एनोड। आई डोंट नो इफ तुम लोग को उल्टा दिख रहा है क्या? डू यू सी माई राइट एज अ लेफ्ट? क्योंकि ऐसा होता है कैमरा में। Yes, sir. अपोजिट दिख रहा है। सो दिस इज Yes. एक्चुअली माई राइट हैंड, या दिस इज माई राइट हैंड। तुमको लेफ्ट दिख रहा है क्या उसमें? यस और नो? Yes, sir. ओके। मिररिंग होता है, ये भी एक सेटिंग होता है इसमें, मिररिंग। इसको मैं ऑफ कर सकता हूँ। I'll try to do that later on, ठीक है ना, probably for the next class मिररिंग ऑफ कर दूंगा। So it for some reason it basically gives the mirroring whatever, right? So इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपन। So what I'm saying is कि राइट हैंड का जो अपना कैथोड है माइनस लेफ्ट हैंड का जो अपना एनोड है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं, एंड जो भी सेल पोटेंशियल आएगा दैट इज गोइंग टू बी द ओवरऑल सेल पोटेंशियल। और ये अपन जब अभी कैलकुलेट करेंगे ना तो उसके तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, विल गो विद एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है। ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, अगर मेरे को साइन चेंज करनी है ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन पोटेंशियल, यू सिंपली टेक अ नेगेटिव ऑफ इट। समझ में आना, साइन को उल्टा करना है। ओके, ओवरऑल हमको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, बेसिकली सेल पोटेंशियल जो भी है, ओके, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इतना ध्यान में रखो। क्लियर है? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। ओके, अब देखो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके लिए पोटेंशियल कौन सा है अपना, कौन सा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? दिस वाज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैथोड ही था ना अपना, ऐसे चीज, इजंट इट? तो ये था अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसका पोटेंशियल आता है 0। ओके, इसका मतलब सेल का पोटेंशियल क्या हो गया? जो भी एनोड का पोटेंशियल रहेगा उसका एग्जैक्टली अपोजिट। एनोड बोले तो जो लेफ्ट हैंड में है, क्लियर है, उसका पोटेंशियल अपोजिट कर देता हूं मैं, तो मेरे को पूरे सेल का पोटेंशियल मेरे को मिल जाएगा। ओके, और इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर सेल, मान लो कि इफ आई कनेक्ट जिंक, ओके, आई थिंक देयर इज अ एग्जांपल, इसके बाद वाला एग्जांपल ही है इसमें, विल जस्ट गो विद एग्जांपल हियर, दिस इज द वन। सो मान लो कि मैं जिंक लेता हूं एज अ एनोड, ठीक है ना। ऑब्वियसली जिंक अगर देखा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, इजंट इट? इसकी वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इज 0,
और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज नेगेटिव। सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन। ये टर्म से ही अपने को पता है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो क्या होगा, रिडक्शन। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिडक्शन नहीं होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अंडरस्टूड है ना? इज दिस सेंसिबल? Yes, sir. ओके, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? गाने सुनना बंद करो, ध्यान दो। ओके, सो जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, क्यों हो रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन? क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ये कम है। इनफैक्ट अगर एक्टिविटी सीरीज देखें तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक इज अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज। इसके वजह से जिंक ये इसका रिडक्शन होगा, सॉरी जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। ओके, तो जो जिसकी एक्टिविटी ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी एक्टिविटी कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे चाहे वैसे ध्यान में रखो, इट इज अ मैटर। ऑलराइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी थोड़ी देर में अपन देखेंगे। दैट इज एक्चुअली अ मच बेटर वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, मतलब किस तरह से अपन यूज करते हैं, बिकॉज फाइनली यू विल बी गिवन वैल्यूज और उन वैल्यूज से तुमको सेल पोटेंशियल की निकालना पड़ता है। सो दिस इज अवर जिंक एंड दिस इज अवर SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया है। ओके, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 1 मोलर सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है दैट इज अ मोलर सोल्यूशन, उसमें डिप किया है। ओके, यहां से मैं हाइड्रोजन गैस अंदर भेज रहा हूं। इसका मैं प्रेशर रखता हूं 1 atm, ठीक है ना, 1 atm इसका प्रेशर रखूंगा मैं, और इसको मैं अंदर भेजूंगा। देयर इज अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे, इसका कंस्ट्रक्शन अपन लास्ट इसमें देखा था, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है ऑन अ प्लैटिनम वायर, ये वायर यहाँ पे आ रहा है। ओके, उसको मैंने एनोड को कनेक्ट किया है। जो प्लैटिनम प्लेट है उसको मैंने प्लैटिनाइज्ड किया है बाय प्लैटिनम ब्लैक। ओके, मतलब प्लैटिनम के पाउडर से उसको कोट किया है। क्यों कोट करते हैं हम इसको, ताकि सरफेस एरिया बड़ा हो जाए। सरफेस एरिया बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है सरफेस एरिया, एंड वी गेट अ रिएक्शन, ज्यादा फास्ट रैपिड रिएक्शन अपने को मिलती है। विच एवर, इट कुड बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट कुड बी रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज बीइंग यूज्ड एज कैथोड, कैथोड करके यूज कर रहे हैं, इसलिए रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, एंड दिस इज अवर जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे अपना जिंक का मेटल प्लेट है। ऑलराइट, एंड दिस इज गेटिंग इनटू द सॉल्यूशन एज जिंक आयन। 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। ठीक है, सो दिस इज एनोड रिएक्शन, दिस इज कैथोडिक रिएक्शन। ठीक है, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं अपने को। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, so what we get is a overall cell reaction, zinc plus 2H plus gives you hydrogen gas plus zinc। तो यहाँ पे जिंक आयंस लिबरेट हो रहे हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। एंड दिस इज अवर सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज में से अब जैसे अगर मैं KNO3 यूज कर रहा हूं एज सॉल्ट ब्रिज, तो इधर जो है इस साइड में नाइट्रेट आयंस आएंगे और इस साइड में पोटेशियम आयंस आएंगे सॉल्ट ब्रिज में। ओके, पोटेशियम आयंस यहाँ पे इसलिए आएंगे क्योंकि हाइड्रोजन मतलब H+ जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है यहाँ से। अगर H+ का आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो जो नेगेटिव आयंस रहेंगे, जैसे HCl ले रहे हैं अपन, isn't it, 1 मोलर HCl सोल्यूशन लिया है, तो क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए हमने क्या भेजे, वहां पे पोटेशियम आयंस भेजे, ये ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। और यहाँ पे जिंक आयंस बढ़ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए हमने इधर नाइट्रेट आयंस भेजे हैं। ओके, सो ये सॉल्ट ब्रिज का पर्पस हो गया। इफ यू लुक एट द पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना आ रहा है 0.76। वो इसलिए कि अगर ये जिंक इलेक्ट्रोड है, इफ दिस इज अ जिंक इलेक्ट्रोड, तो इसका जो सेल पोटेंशियल आएगा, ओके, इसका cell potential I don't exactly remember, it is 0.34 or it's minus 0.76, that is the cell potential of zinc। okay, ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होता है, नॉट का मतलब ये होता है रिडक्शन, और यहाँ पे देते हैं अपन, तो दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एंड दैट इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, और अब मैं अगर नेट सेल रिएक्शन निकालता हूं तो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0
एनोड, ओके। कैथोड कितना है अपना 0, ओके, और एनोड कितना है अपना -0.76, तो आंसर कितना आएगा 0.76, विच इज व्हाट यू सी हियर, ओके। वोल्टामीटर में क्या दिख रहा है तुमको, डिफरेंस दिख रहा है दोनों सेल के पोटेंशियल का। सो व्हाट आई नो राइट नाउ इज कि क्या इस जो अपना एनोड था उसका पोटेंशियल कितना है, इजंट इट। सेल का पोटेंशियल तो मिल गया अपने को, इसका पोटेंशियल 0 है, मतलब जो सेल का पोटेंशियल रहेगा दैट इज आल्सो द पोटेंशियल ऑफ दिस, ठीक है। अब मान लो इसका अगर मेरे को पोटेंशियल नहीं मालूम, सो फ्रॉम दैट रीडिंग आई कैन कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, ठीक है ना। मान लो कि ये मेरे को मालूम ही नहीं है, सो लेट्स से E नॉट कैथोड, सॉरी एनोड है ये, वी डोंट नो, ओके, वी डोंट नो दैट, एंड दिस इज E नॉट कैथोड, okay, that is equal to 0, alright, और मेरे को रीडिंग मिल रहा है दिस इज E cell, that is equal to 0.76, ठीक है ना। using the same equation I can now say E cell, okay, E cell which is equal to 0.76 is equal to E naught cathode minus E naught anode, okay। अब जो कैथोड है दैट इज इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा 0.76 इक्वल टू 0 माइनस एनोड, एनोड कितना है वो अपने को निकालना है, इजंट इट, यही अपने को फाइंड आउट करने का है। मतलब ई एनोड कितना हो गया माइनस 0.76, अंडरस्टूड है क्या ये वोल्ट, ये वोल्ट में आ रहा है आंसर क्योंकि वोल्टामीटर यूज करें। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। उसको अपन ने एनोड बनाया, बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहने स्पॉन्टेनियस रहने की वजह से वी मेड दैट एज अ एनोड और दैट बिकम्स द कैथोड। अगर अपोजिट होता, मतलब अपोजिट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब रिडक्शन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो उस केस में उस सेल को अपन क्या बनाते कैथोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन क्या बनाते एनोड, अंडरस्टूड है। अगर रिडक्शन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो हाइड्रोजन या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या जो भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहेगा उसको अपन बनाएंगे एनोड, ओके। सो उसका एग्जांपल देखो कि इसमें अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ एनोड ले रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है, ओके, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो आता है दैट इज एक्चुअली हाईली पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, इजंट इट। तो बिकॉज ऑफ दैट इट कैन बी यूज्ड एज कैथोड, ओके। सो इसका हाफ सेल रिएक्शन ये रहेगा, ऑलराइट। So this is basically going to serve as a cathode and standard hydrogen electrode is going to serve as anode. All right, so we can represent this cell as this, okay। platinum देखो H2 से H plus जा रहा है, that is oxidation, okay, at anode, and this is reduction। so इस तरह से ये कर रहा है। यहाँ पे we also need, actually something is missing from here, is basically the platinum electrode, okay। so we need a platinum electrode, दोनों तरफ inert electrode रहेगा and this is going to get connected, alright, that's how the reaction will occur, alright। so what that means is that कि अगर standard hydrogen electrode मेरे को अगर choose करना है तो that needs to be reversible, isn't it? reversible होना चाहिए, मतलब कि it can be used as a cathode as well as anode when it is required, understood है? yeah, No, sir. Yes, sir. standard hydrogen किसी ने तुम्हें no बोला I guess, Yes, sir. yes, okay। standard hydrogen electrode जो है या फिर जो भी reference electrode है, alright, उसको reference क्यों बना रहे? क्योंकि अगर मान लो मेरे को as a cathode use करना है तो I can use it, अगर मेरे को as a anode use करना है तो भी I can use it, okay। and these type of electrodes are chosen as a reference electrode, standard reference electrode। SHE is basically a primary reference electrode, Calmel electrode होता है that is a secondary reference electrode। उसका reason मैं बता देता हूँ अभी because you know I don't know if you all remember it।
So there are two types of electrode, reference electrodes. There are actually couple more actually, लेकिन हमारे syllabus में सिर्फ standard hydrogen है and calomel. Okay, this is called as primary reference electrode. Okay, and this is secondary reference electrode. So standard hydrogen electrode जो होता है अपना, उसका कंस्ट्रक्शन अपन ने देखा, राइट? इसके ड्रॉबैक्स अपन देखेंगे बेसिकली आगे, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन अपन ने देखा. हाइड्रोजन गैस भेजना पड़ता है एट 1 atm. हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो सोल्यूशन होता है जिसमें वो इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड एट 1 molar. ऑलराइट, दिस इज डिफिकल्ट टू डू प्रैक्टिकली. ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. इसकी वजह से क्या होता है, इसका पोटेंशियल वैरी होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर. तो जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्यूरेसी नहीं रह रही. ऑलराइट, सो इसलिए हम क्या करते हैं कि वी यूज अ डिफरेंट इलेक्ट्रोड जहां पे पोटेंशियल कंसिस्टेंट अपने को मिलता है. तो वी यूज कैलोमेल इलेक्ट्रोड. यू नो व्हाट द कैलोमेल इज, राइट? ओके, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, इजंट इट? तो कैलोमेल यूज कर रहे हैं अपन, और ये जो पोटेंशियल होता है, इसका जो पोटेंशियल है दैट इज वेरी कंसिस्टेंट. इसका कंस्ट्रक्शन इज मतलब इसको बार बार नहीं बनाना पड़ता, एक बार बना दिया यू कैन एक्चुअली कैरी इट. राइट, इट इज यू कैन से मोबाइल. ओके, सो इट्स अ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोड. ये पेन जो है ना, इतना ही आता है बेसिकली कैलोमेल इलेक्ट्रोड. एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो नॉट बिगर देन दिस. इतना ही आएगा, छोटा सा ट्यूब रहेगा वहां से अपन, और नीचे में एक बीकर रहता है जिसमें अपन इलेक्ट्रोड डिप करते हैं. सेम थिंग विथ कैलोमेल इलेक्ट्रोड, बट कैलोमेल इलेक्ट्रोड में सॉल्वेंट नहीं लगता, इलेक्ट्रोलाइट नहीं लगता. ओके, उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट अंदर ही फिल होता है. तो ये जो है, इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता. यू कैन जस्ट कैरी इट. ऑलराइट, इसको क्लीन करो एंड यूज करो. सो दिस इज मच मोर कन्वीनियंट, इजंट इट? तो एक बार मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कैलोमेल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यूज कर लिया. सो नाउ आई कैन यूज दैट एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ओके, so this is not zero, this is zero. इसका जो पोटेंशियल होता है that is equal to zero, क्योंकि that is the primary reference. इसका पोटेंशियल अपन जीरो ले रहे हैं, लेकिन कैलोमेल का जो पोटेंशियल है that is not equal to zero. Understood है? So that is some positive number, छोटा सा positive number होता है. It's not very high, it's very small positive number, and that is now used as a reference electrode. ठीक है ना? But that is also reversible. That is one of the criteria. Reversible इसलिए चाहिए अपने को कि अगर मान लो पोटेंशियल जो है, जिसका अपने को पोटेंशियल निकालना है, इफ वो पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अपने को जो अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट नीड्स टू बी यूज्ड एज एनोड. जैसे यहाँ पे कर रहे हैं अपन, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो अपने को जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट इज बीइंग यूज्ड एज एनोड. और अगर पोटेंशियल नेगेटिव है तो SHE अपन यूज करते हैं एज अ कैथोड. अंडरस्टूड है? Yes, sir. ऑलराइट, लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन. इस रिव्यू क्वेश्चन को आंसर करो, ठीक से पढ़ो पहले. ओके, तो क्वेश्चन दिया है अपने को, जिंक और सिल्वर सेल है बेसिकली. जिंक इज एनोड और ये जो है दैट इज अ कैथोड बेसिकली. सो एनोड पे अपना होता है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, इजंट इट? अब जब अपने को पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दैट इज जिंक इज बेसिकली एनोड, दैट इज करेक्ट. रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज अकरिंग एट as this one, yeah, that is correct, right? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन, अब दोनों जगह रिडक्शन नहीं हो सकता, obviously answer has to be one of this, so that is the incorrect one, and that is actually the correct answer for this question. Okay, all right, let's talk about electrochemical series. So हमने देखा कि किस तरह से सेल पोटेंशियल अपन निकालते हैं. अगर मेरे को दो हाफ सेल पोटेंशियल मेरे को मालूम है तो आई कैन कैलकुलेट फुल सेल पोटेंशियल. ओके, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल इससे निकाल सकते हैं. ओके, इफ द पोटेंशियल, इफ दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ओके, मतलब कि जो रिडक्शन पोटेंशियल दिए है अपने को, इफ दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, देन द रिडक्शन रिएक्शन विल बी प्रिफर्ड
to the reduction, and therefore क्या होगा इसको, this is going to be used as cathode, isn't it? अगर ये जो reduction potential number है E नॉट वैल्यू, ओके, किसी भी हाफ सेल का, तो हाफ सेल अपन एज अ रिडक्शन करके लिखते हैं, isn't it? तो ये जो रहेगा that is going to be if this is a positive number, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगा, और जो SHE है, SHE यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, isn't it? क्योंकि इसका पोटेंशियल, तो इसका तो नंबर अपने को मालूम है ना, दैट इज 0, ओके, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इज 0, क्योंकि अपन ने असाइन किया है इसको 0 आर्बिट्रेरीली, और E नॉट जो वैल्यू है इसका दैट इज पॉजिटिव बेसिकली, तो इसका मतलब रिडक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, अंडरस्टूड है? तो उस केस में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस H+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब समझ लो कि क्या हो रहा है कि जैसे इफ आई हैव 2 सेल्स, ठीक है ना, मान लो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस इज SHE एंड दिस इज अवर व्हाटएवर लाइक सम सेल, जैसे आपको क्लोरीन का लिया था अपन ने Cl2 सेल, isn't it? और इनको मैंने कनेक्ट किया है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द फुल डायग्राम, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है, ऑलराइट, एंड देयर इज अ सॉल्ट ब्रिज आल्सो। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होता है 1 मोलर काय का, H+ का। अब यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज करेक्ट, ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ एनोड। यहाँ पे इसका पोटेंशियल जो है दैट इज इक्वल टू 0 और इसका पोटेंशियल आ रहा है पॉजिटिव, ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे H+ आयन जो है वो बन रहे, isn't it? हाइड्रोजन इज ब्रेकिंग डाउन इनटू H+ आयन, तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज, अंडरस्टूड है? सो जब अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ एनोड यूज करते हैं तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, क्लियर है? ओके, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और अगर E नॉट वैल्यू ऑफ द हाफ सेल इज नेगेटिव, तो इस केस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और SHE का जो E नॉट वैल्यू है दैट इज 0, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड एज एनोड एंड दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड एज कैथोड, ठीक है ना? तो अगर कैथोड यूज कर रहे हैं तो रिडक्शन रिएक्शन होगी, अगर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे तो जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, ओके, डिक्रीज होगा, क्लियर है क्या? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा मतलब pH बढ़ेगा वहां पे, ठीक है? Yes, sir. ये ध्यान में रखना, काफी बार तुमको pH दिया होता है, pH से फिर तुमको H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, और फिर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन से सेल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, अपने को आगे आएगा किस तरह से निकालते हैं, ऑलराइट, वी यूज अ नर्स्ट इक्वेशन फॉर दैट, लेकिन वी नीड टू यूज दैट, ठीक है ना? pH कभी कभी देते हैं, सो अगर ये मेरे को मालूम है, सो हम लोग वी कैन कंपाइल अ टेबल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल, ऑलराइट, आई नो कि SHE का जो रिडक्शन पोटेंशियल है E नॉट जो है दैट इज इक्वल टू 0, यहां से मैंने मान लो जिंक इलेक्ट्रोड का निकाल दिया, जिंक को लेके मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड का निकाल दिया, कॉपर से मैं मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड निकाल सकता हूँ, मर्क्यूरी से किसी और का निकाल सकता हूँ, तो इस तरह से मैं अलग अलग इलेक्ट्रोड के वैल्यूज निकाल सकता हूँ, isn't it? सिल्वर का निकाल दिया, सो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वेरियस डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, लेकिन सारे के सारे वैल्यू जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, isn't it? विथ रिस्पेक्ट टू मतलब कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, इफ दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम बाकी के इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो SHE से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, कितना ज्यादा है या कितना कम है, कम है तो नेगेटिव है और ज्यादा है तो पॉजिटिव है, अंडरस्टूड है? सो हम लोग सारे वैल्यूज इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर कर रहे हैं, ओके, दैट्स व्हाई दैट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और अगर मैं कंपाइल करता हूं टेबल, सो व्हाट वी गेट इज दिस, ओके, दिस इज अवर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यूज है, ओके, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज, ऑलराइट। सो सबसे कम वैल्यू जो है ये लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज है, दिस इज लोएस्ट,
कौन सी वैल्यूज है ये, कौन सी वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, रिमेंबर दैट. ओके, दिस इज फॉर हाफ सेल ओनली. हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है ये, एंड दिस इज एक्चुअली हाईएस्ट. ओके, लेट मी जस्ट आस्क यू, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिटेल में पढ़ा है ना रेडॉक्स में, मतलब यू आर अवेयर ऑफ दिस. काफी टाइम हो गया, भूल गए होंगे, आई अग्री विद दैट. ओके, लेकिन पढ़ा है. यस, ऑलराइट. सो दिस इज द लोएस्ट, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा. दिस इज द हाईएस्ट. ओके, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका रिडक्शन होगा क्या, नहीं होगा. उसका क्या होगा फिर, ऑक्सीडेशन. और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका क्या होगा, उसका रिडक्शन. ठीक है ना. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होंगे, ऊपर वाले जो वैल्यूज है उनका ऑक्सीडेशन होगा, और नीचे वाली जो वैल्यूज है उनका रिडक्शन होगा. देखो ये टेबल मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाला है. ओके, इट कैन ऑल्सो बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब फ्लोरीन सबसे ऊपर होगा और लिथियम सबसे नीचे होगा. दैट इज ऑल्सो, एंड दैट इज द वे इट इज गिवन इन मॉडर्न एबीसी. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन रेडॉक्स चैप्टर. एबीसी में अगर तुम देखोगे वहां पे तुम्हारा टेबल पूरे के पूरा दिया हुआ है. ऑलराइट, तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. ओके, एंड देन यू कैन सी रुबिडियम. ऑब्वियसली रुबिडियम बड़ा एटम है, इट गिव्स आउट दैट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली. बट देन पोटेशियम रुबिडियम से छोटा है, सीजियम फिर से बड़ा आ रहा है. दीज आर ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट्स. ठीक है ना. सोडियम यहाँ पे आता है. ओके, सोडियम का एक्चुअली कम है. तो ग्रुप 1 में थोड़ा सा रैंडम अरेंजमेंट अपने को मिलता है. सेम थिंग ग्रुप 2 में अपने को रैंडम अरेंजमेंट मिलता है. एंड द रीजन फॉर दैट इज, मतलब यू वुड एक्सपेक्ट कि दिस इज अ टेंडेंसी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इनका, इट्स अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इजंट इट. हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, इट शुड कोइंसाइड विथ आयनाइजेशन पोटेंशियल. बराबर है ना. आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इसको कोइंसाइड होना चाहिए. अब जैसे फॉर एग्जांपल वी नो रुबिडियम, सीजियम, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है, इजंट इट. सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है. ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट, इजंट इट. तो दीज आर मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन, हमको मालूम है, फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकलते हैं. और लिथियम का इलेक्ट्रॉन सबसे स्लो निकलता है, इजंट इट. लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसका होता है, सीजियम. और क्या, फ्रांसियम तो अपन यूज ही नहीं करते, मतलब रुबिडियम, सीजियम. सो दीज आर द एलिमेंट्स जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है सबसे कम है. ओके, सबसे कम एनर्जी लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा. लेकिन इनका देखो रिडक्शन पोटेंशियल अगर देखते हैं तो ये उससे कोइंसाइड नहीं हो रहा. एंड द रीजन फॉर दैट इज, जब भी अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालते हैं दैट इज इन गैसियस स्टेट. आयनाइजेशन एनर्जी जब भी निकालते हैं हम गैसियस स्टेट में निकालते हैं. और जब भी हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, मतलब ई नॉट वैल्यूज जब अपन निकालते हैं, दैट इज इन एक्वियस स्टेट. ई नॉट वैल्यूज दैट इज इन एक्वियस स्टेट. ओके, और एक्वियस फेज में हमको हाइड्रेशन एनर्जी ये भी कंसीडर करनी पड़ती है, और लिथियम की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इजंट इट. तो एक्वियस फेज में अगर देखा जाए तो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वियस फेज. ठीक है ना, समझ में आया. गैसियस फेज में ऑब्वियसली यू कैन पिक आइदर सीजियम और रुबिडियम, व्हिचएवर इज गिवन. ठीक है, गैसियस फेज में. लेकिन इन एक्वियस फेज लिथियम इज द बेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी. और ज्यादा हाई हाइड्रेशन एनर्जी क्यों होती है, बताओ फटाक से. ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हो. क्यों, दैट इज करेक्ट. कैटायन साइज बहुत छोटा होता है. कैटायन साइज छोटा है. व्हाट वी से इज चार्ज डेंसिटी ज्यादा है. रिमेंबर दैट. यस सर. डाउन टू नॉट जस्ट द साइज और नॉट जस्ट द चार्ज, हमको चार्ज डेंसिटी देखना पड़ता है. ओके, चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय साइज कितना है. अगर साइज छोटा है और चार्ज ज्यादा है
तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, isn't it? अब लिथियम के केस में इट इज अ वेरी स्मॉल आयन एज वेल एज इट हैज वन फुल चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है और साइज बहुत छोटा है बेसिकली, isn't it? इसमें एक ही शेल बचा है ना लिथियम में, तो okay, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे, that's it. So it's a very small ion, that's why it has a very high charge density. High charge density की वजह से it attracts more water molecule, that's why it has very high hydration energy. इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब it is being used as reducing agent and these are being used as oxidizing agent. तो ये जो एलिमेंट्स है बेसिकली ओके, जिनका जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आता है उनका ऑक्सीडेशन होता है, उनको अपन यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है ओके, उनका रिडक्शन हो रहा है और उनको यूज कर रहे हैं अपन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो एज यू गो डाउन इस टेबल में जो नेगेटिव वैल्यूज है वो कम होते जा रही है, बेसिकली इट इज गोइंग टुवर्ड्स 0, इट बिकम्स 0 एट हाइड्रोजन, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन में इट बिकम्स 0 और उससे भी नीचे आते हैं स्टार्ट्स टू गेट पॉजिटिव फिर, और तुमको दिख रहा है यहाँ पे जैसे जैसे अपन आते हैं वैसे वैसे इट बिकम्स इवन मोर पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्वियसली मेटल के केस में अपने को हाइड्रेशन एनर्जी देखनी पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई दैट इज द इशू कि तुमको एक लीनियर ट्रेंड नहीं मिलता, थोड़ा सा अब्रप्ट ट्रेंड मिलता है। ये ट्रेंड तुमको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक्टिविटी सीरीज में हम लोग ये ट्रेंड नहीं देखते पूरे के पूरा, हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट देखते हैं, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल में बहुत सारे एलिमेंट्स है, तुम सारे के सारे याद नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली उस ऑर्डर में तो याद ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तुमको वैल्यूज दी होगी, ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज दी जाती है, सो फ्रॉम द वैल्यूज तुमको कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स अपन आगे देखने वाले हैं कि वैल्यूज से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो याद करो मत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लिव इट एज इट इज। कोई भी तुमको इसका ऑर्डर नहीं पूछेगा, जैसे 10th में क्वेश्चन आते थे ना, उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछेंगे, ओके। थोड़ा सा एक्टिविटी सीरीज तुमको मालूम होना चाहिए, जो 10th वाली जो तुम्हारी ऑर्डर थी एक्टिविटी सीरीज की, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। यू नो दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आयरन, लीड, टीन, जिंक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत कुछ एलिमेंट्स तुमको मालूम रहने चाहिए, अदर देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो तुमको अपने को जो आगे आएगा दैट इज रिडक्शन ऑफ वाटर, ओके। वाटर का रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है प्लस OH आयन मिलता है, और ये वैल्यू देखो नेगेटिव है, ओके, -0.83। वाटर का रिडक्शन होता है तो वी गेट वैल्यू ऑफ -0.83, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑब्वियसली 0। कॉपर देखो, यू कैन सी दैट ये कॉपर 2+ से कॉपर +1 इट इज पॉजिटिव, और यहाँ पे तुमको मिलेगा कॉपर 2+ से कॉपर फुल रिडक्शन दैट इज 0.34। जिंक कहाँ गया, जिंक आई थिंक, ओके। जो जिंक का जो वैल्यू था दैट इज -0.76। देखो अपन ने यूज किया था इसके पहले जो प्रॉब्लम किया था उसमें इसको। सो एज यू गो कॉपर +1 यू कैन सी दैट उसका ज्यादा है, ओके। कॉपर +2 का कम है, ओके। नेक्स्ट इफ यू लुक एट दिस स्पेसिफिक थिंग्स, ओके, जैसे आयोडीन देखो, उसके बाद देयर शुड बी अ ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड फ्लोरीन। नॉन मेटल्स के केस में देयर इज अ क्लियर ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ रही है, रिडक्शन पोटेंशियल वैसे वैसे बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। सो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम आ रहा है आयोडीन का हैलोजन फैमिली में, ओके। सो डोंट नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज, सिर्फ ये चीज ध्यान में रख लो कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ओके। सॉरी उल्टा बोला था मैंने, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका बहुत जल्दी रिडक्शन हो जाएगा, ओके। दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान में रखना। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो उस तरह से भी तुम उसको ध्यान में रख सकते हो। Another thing I wanted to highlight is the water. This is the one, not this one. Okay. इसको देखो, this is basically, if you look at it, this is basically a reduction of oxygen. Okay.
या फिर इसको अपन बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू आता है 1.23, पॉजिटिव है। ओके, ऑक्सीजन का रिडक्शन जल्दी हो सकता है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। लेकिन इसका अपोजिट रिएक्शन अपने को कभी कभी लिखना पड़ता है, तो ये रिएक्शन तुम लिखोगे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड दिस इज द रिएक्शन फॉर रिडक्शन ऑफ वाटर। ओके, और वैल्यूज तो तुमको दी होती है, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट द वैल्यूज, ठीक है। Other things you don't actually have to worry about it. Basically, you just need to remember how to read this table, और इससे अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। सबसे कॉमन चीज जो तुमको यहाँ पे दिखेगी कि सारे के सारे वैल्यूज में सारे के सारे जो रिएक्शंस दिए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड में, isn't it? You can see that इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि ऑब्वियसली दीज जो है लिथियम इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं, लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा, isn't it? So इसको मैंने अपोजिट लिखना चाहिए, तो पॉजिटिव में लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इसको रिडक्शन के इसमें लिख रहा हूं, सो दिस इज द रिडक्शन फॉर्म, isn't it? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा, इवन दो दैट मे नॉट एक्चुअली हैपन, मतलब कि लिथियम आयन को तुम रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल लिथियम आयन को तुम रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन अपन इसको एज ए रिडक्शन रिएक्शन ही लिखेंगे, बट यूज करते समय वी गोना फ्लिप दैट साइन, इसको मैं प्लस 3.04 ये करके इसका जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उस हिसाब से इसको लिखूंगा, मतलब लिथियम इज फॉर्मिंग लिथियम आयन। ओके, तो दिस इज अ कन्वेंशन। ओके, जब भी पोटेंशियल की वैल्यूज दी होती है, देखो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही लिखा है सिर्फ, ओके, ये भी नहीं लिखा है कि इट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज दे आर ऑलवेज रिटर्न एज अ रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए ये सारे के सारे रिएक्शन कैसे है? रिडक्शन रिएक्शन से। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Alright. हाई पॉजिटिव वैल्यू है, तो जिस डायरेक्शन में ये रिएक्शन दी है उस डायरेक्शन में होगी। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दीज वैल्यूज, ये सारे के सारे वैल्यूज हाई पॉजिटिव वैल्यूज है, isn't it? एटलीस्ट सम ऑफ दीज, ये 1 के ऊपर अपन बोल देंगे, ठीक है, 1 से लेके जितने भी वैल्यूज है, तो ये जिस डायरेक्शन में लिखे है उस डायरेक्शन में ये स्पॉन्टेनियस रहेगी। और ये जो हाई नेगेटिव वैल्यू है, ओके, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी बिकॉज दे आर स्पॉन्टेनियस इन अपोजिट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ये स्पॉन्टेनियस नहीं है बिकॉज हाई नेगेटिव वैल्यू बहुत कम वैल्यू है। ओके, तो इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में ये स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर है? सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। क्लियर है? सो दैट्स हाउ टू रीड द टेबल। सो ये जो है दैट इज मच बेटर देन एक्टिविटी सीरीज, क्योंकि वी कैन यूज अ जनरलाइज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन यूज कर सकते हैं और इससे अपन सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। अ सेल दैट इज अ वर्किंग सेल, जिसका पोटेंशियल मैं डिजाइन कर सकता हूँ। ओके, जैसे अपन ने इसके पहले एग्जांपल्स किए, अगर मेरे को मालूम है मेरे को कौन सा पोटेंशियल चाहिए, तो आई कैन चूज विच ऑक्सीडेशन एंड विच रिडक्शन रिएक्शंस टू पिक। ओके, कौन से दो हाफ सेल्स को मिला के मैं ऐसा सेल बनाऊंगा जिसका पोटेंशियल मेरे को जो चाहिए वो पोटेंशियल मिलेगा। ओके, इट कंबाइंस मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों। एक्टिविटी सीरीज में सारे के सारे नॉन मेटल्स थे या फिर मेटल्स थे, मतलब दो अलग अलग सीरीज थी, एक नॉन मेटल्स की सीरीज थी, एक मेटल्स की सीरीज थी। यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है। उसमें पूरे रिएक्शंस नहीं थे, यहाँ पे सारे रिएक्शंस अपन यूज कर सकते हैं। और भी कोई ऐसी रिएक्शन है जो हो सकती है तो उसका भी पोटेंशियल मैं निकाल सकता हूँ। आई सिंपली नीड टू कनेक्ट दैट विद वन ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और मैं उसका पोटेंशियल मेरे को मिल जाएगा उस केस में। It allows for us to determine it quantitative and not just qualitative. Quantitatively हम determine कर सकते हैं कि कितना रिडक्शन होगा, कितना पोटेंशियल रहेगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, isn't it? या फिर क्वांटिटेटिवली अपन बता सकते हैं कि कौन सा सेल कनेक्ट करने से मेरे को कितने का बूस्ट मिलेगा, कितने से कम होगा, ये सारी चीजें अपन क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं, नॉट जस्ट अच्छा है बुरा है वाला काम। ओके, वी कैन एक्चुअली पुट अ नंबर on that information, or obviously we can use it to compute the standard EMF of the cell. Standard EMF मतलब E naught of the cell calculate करने के लिए अपन इसको use कर सकते हैं और इसके ऊपर अपन कुछ problems भी देखेंगे। Alright, तो जैसे for example इस cell का EMF अपन निकालते हैं, this is a Daniell cell, और इसका अपन निकालते हैं। Daniell cell and galvanic cell basically they are interchangeable.
तो दिस इज अवर एनोड, ओके, एंड दिस इज अवर कैथोड, ओके। इसका जो ई नॉट है दैट इज नेगेटिव और इसका जो ई नॉट है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई इट इज कैथोड एंड दैट इज व्हाई दिस इज एनोड, ओके। नेगेटिव है, कम है इसलिए एनोड, ज्यादा है इसलिए कैथोड, ओके। तो नेट सेल रिएक्शन रहेगी ऑब्वियसली, यहाँ पे देखो जिंक टू जिंक आयन कन्वर्जन होगा, जिंक आयन टू कॉपर कन्वर्जन होगा, दिस इज द नेट सेल रिएक्शन, ओके। सो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ओके। ये इसी सेल से अपन बता सकते हैं। सो ई नॉट सेल अगर मेरे को निकालना है तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है ना, क्लियर है। कैथोड माइनस एनोड कर रहे हैं या फिर राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हैं, ओके, क्योंकि कैथोड हमेशा राइट में होता है और एनोड हमेशा लेफ्ट में होता है। ये इस समय काम आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को इस तरह का सेल दे दिया है, ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा एनोड है, दिस इज लेफ्ट। सबको ये देखना है कि दिस इज अरेंज्ड प्रॉपरली, कहीं गलत तो नहीं लिखा है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, मेरे को राइट माइनस लेफ्ट करना है, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल जो भी है माइनस इसका पोटेंशियल, हो गया काम, ओके। लेकिन जो पोटेंशियल अपन यूज करेंगे ये कौन से रहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, कभी कभी फंसा सकते हैं बाय गिविंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, तो ध्यान रखना पड़ता है कि यू आर एक्चुअली गिवन अ रिडक्शन पोटेंशियल। सिर्फ ई नॉट लिखा रहेगा, ई नॉट कैथोड, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो भी सेल है फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा रहेगा ई नॉट, जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक आयन रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं, जिंक आयन जिंक, ठीक है ना। सो दैट इज माइनस 0.76, isn't it? तो ये तुमको दे दिया है, दैट्स अ रिडक्शन रिएक्शन, और उसका पोटेंशियल मेरे को दिया है इतना है, ओके। अब ऑब्वियसली एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो तुमको इसका साइन फ्लिप करना पड़ेगा फॉर ऑक्सीडेशन, ओके। सो कैथोड माइनस एनोड, सो ये कैथोड का पोटेंशियल और एनोड का पोटेंशियल होता है माइनस 0.76, तो अपन देखो माइनस ले रहे हैं यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जो पोटेंशियल है दैट इज गेटिंग एडेड। इसको दूसरा निकालने का तरीका था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके, ये एनोड का लिख रहा हूं मैं, एनोड ऑक्सीडेशन, ओके, प्लस ई नॉट, सॉरी नॉट नहीं लिखेंगे ना अपन क्योंकि अपन ऑलरेडी ऑक्सीडेशन यूज कर रहे हैं, isn't it? ये समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ले रहे और यहाँ पे रिडक्शन लेते, तो दोनों का सम अगर करता हूं मैं, कैथोड का रिडक्शन और एनोड का ऑक्सीडेशन, तो ये अगर लेना मेरे को ऑक्सीडेशन तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.76, ओके, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड प्लस ये, तो ये तो प्लस है 0.34, ओके, तो मेरे को फिर भी आंसर वही मिलता है। अंडरस्टूड है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. बाय कन्वेंशन कैथोड माइनस एनोड करते, दोनों साइंस जो है या दोनों वैल्यूज जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज अपन यूज करेंगे दोनों, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, लेकिन जो करंट होता है बाय कन्वेंशन दैट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। सो देखो यहाँ पे पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वी हैव कैथोड एंड वी हैव एनोड, ठीक है ना, दो सेल्स है, तो इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज फ्लोइंग, सो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन दैट डायरेक्शन, और जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ओके, मतलब फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, okay, so that's how the current flows from high potential to low potential। ये तुमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब तुम्हारा 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा, फिजिक्स में हुआ है क्या,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आता है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें आती है. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ है क्या तुम्हारा 12th का? Yes, sir. सो यू नो ऑल दिस स्टफ नो. दूसरा चीज है कि अगर सेल का ईएमएफ देखा जाए तो सेल का ईएमएफ अगर पॉजिटिव है तो जो अपन रिएक्शन लिखे फुल या नेट सेल रिएक्शन दैट इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है. अगर ई नॉट ऑफ द सेल इज अ पॉजिटिव नंबर तो ये रिएक्शन होगी. अगर ये ई नॉट ऑफ द सेल निगेटिव आता है तो क्या होगा? रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस रहेगी. क्लियर है? अगर ये सिचुएशन है तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, इट इज पॉजिटिव, इट इज नॉट नेगेटिव, तो इसी डायरेक्शन में ये फ्लो होगा. ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो with respect to electrochemical series. Okay, just a revision basically, just to give you the summary of the electrochemical series. All right, जो values है okay, उसमें direction important है basically, क्योंकि सारे के सारे जो values है these are given as reduction potential, so it's very important to actually understand that. Okay, direction जो है वो important है. Okay, electrons जो होते हैं इसमें वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं अपन, क्योंकि इट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल वाला टेबल है पूरा, और टेबल ही रिडक्शन पोटेंशियल का है. सो दिस आर ऑल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स. ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? गेन हो रहे हैं. ओके, सो जिसका पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू है, ओके, जिसका ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है उसका ग्रेटर टेंडेंसी है फॉर रिडक्शन, इजंट इट? जिसका ज्यादा वैल्यू है वो ज्यादा रिड्यूस होगा. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब it is going to go in that direction. इसका रिडक्शन बड़ा spontaneous रहेगा, so it has the most positive value. इसका मतलब क्या होता है कि फ्लोरीन has the greatest tendency to be reduced. Okay, that's why it is the strongest oxidizing agent. Most electronegative element है, that's why it is the strongest oxidizing agent. Non-metals are oxidizing agent. Fluorine is the most electronegative, therefore it is the strongest oxidizing agent. Therefore it has greatest tendency to be reduced. इसमें किसी भी तरह का confusion नहीं चाहिए. अक्सर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब इसी तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर. जो फ्लोराइड आयन है दैट इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. फ्लोराइड आयन से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते. ओके, इसको तुम F2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते. मतलब ये जो रिएक्शन है दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है, ये रिएक्शन इसी डायरेक्शन में हो सकती है. सेकंड, अगर लिथियम की वैल्यू देखें, सो दैट इज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू. लिथियम की वैल्यू इज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू. लिथियम आयन इज वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस. लिथियम आयन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है रिड्यूस करने में. सो इट इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. अपने को मालूम है मेटल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसमें लिथियम जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. Okay, it is very difficult to reduce. इसका reduction नहीं होगा. Okay, at least not in this course. Yeah, industrially obviously you can reduce the lithium and you can obtain lithium from because their lithiums are obtained from the salt itself. Okay, इसका कोई mineral नहीं मिलेगा ना, lithium को obtain ही करना पड़ता है. But in this particular course, for the course you can say lithium cannot be reduced. Sorry, lithium ion cannot be reduced to lithium. तो अगर half cells देखे, these are reversible reaction and in some cases electrode may also take part in the reaction. Okay, either it can act as a cathode or it can act as a anode. जो electrode है वो भी participate कर सकता है reaction में. तो जब अपन उसको change करते हैं from cathode to anode या anode to cathode, तो जो E naught value जो है that needs to be रिवर्स्ड. अंडरस्टूड है ना? ई नॉट वैल्यू रिवर्स करना पड़ेगा अगर अपने को चेंज करना है. सो ऑब्वियसली जो सारी वैल्यूज है दे आर गिवन एज रिडक्शन वैल्यू, लेकिन अगर मेरे को एज ऑक्सीडेशन वैल्यू यूज करना है तो आई नीड टू रिवर्स द साइन, जैसे अपन ने जिंक के लिए किया था जस्ट नाउ. ओके, चीजें याद रखो. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्चुअली. जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में, जब अपन हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें जो नंबर्स आएंगे राइट बैलेंस करने के बाद, दे हैव नथिंग टू डू विद द सेल पोटेंशियल. अंडरस्टूड है?
So if I write a reaction like this, for example, if I need to use this reaction, zinc ion का zinc 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन और सिल्वर आयन जो है वो रिड्यूस हो रहा है. ओके, नाउ ये इस केस में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे को बैलेंस करने पड़ेंगे, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई दैट. ठीक है, इसका मान लो ई नॉट पोटेंशियल था 0 पॉइंट कितना था, माइनस ई नॉट पोटेंशियल माइनस 0.76, इजंट इट, और इसका पॉजिटिव रहेगा कोई नंबर. ओके, सो प्लस एक्स लिख देता हूं मैं. ठीक है, सिल्वर का. अब मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी मल्टीप्लाई करना है. ये जो है दैट इज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दैट हाफ सेल. इसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होगा. रिमेंबर दैट, क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है वो सिल्वर इलेक्ट्रोड और उसके आयंस के बीच की हो रही है ना, इजंट इट. जो सिल्वर आयंस थे दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू सिल्वर. ओके, अब मैं कैलकुलेट करते समय इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं या 10 से मल्टीप्लाई करूं, उससे उस सेल में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना. उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो रहे उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होने वाला, इजंट इट. प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो आई कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय एनी नंबर, इससे इसका रिडक्शन पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, इजंट. इसीलिए अपन वो चेंज नहीं करते. अंडरस्टूड है? Yes, sir. Yes, sir. This is very important, yeah. If we combine two half cell reactions to obtain another half cell reaction, the E naught values are not additive. Okay, दोनों को अपन ऐड नहीं कर सकते. दो हाफ सेल, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था. राइट, लास्ट ईयर के JEE के एग्जाम में देयर वाज 2 रिएक्शंस, कॉपर 2+ से कॉपर मिल रहा है एंड कॉपर प्लस से कॉपर मिल रहा है. ओके, एंड आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, तुम जेई के पेपर में इसको देख सकते हो. बट दीज आर नॉट एडिटिव. ओके, इसको मैं सिर्फ ऐड करके एक नया सेल पोटेंशियल नहीं निकाल सकता. ओके, इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है, सो यू नो दे डोंट ऐड. ओके, और अपन ने जब अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था, इसमें दोनों का एक अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है. अंडरस्टूड है? अगर इसका पोटेंशियल मेरे को निकालना है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे को मालूम है कि ये जो है दैट इज लो पॉजिटिव वैल्यू एंड दैट इज अ हाई पॉजिटिव वैल्यू. ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू नाउ कि इनको मेरे को एज अ सेल करके ट्रीट करना पड़ेगा. दिस इज गोइंग टू बी योर एनोड, दिस इज गोइंग टू बी योर कैथोड, और उससे मैं मेरा वैल्यू निकालूंगा. यू कैन जस्ट ऐड द वैल्यूज. अंडरस्टूड है? इसको एज अ सेल ट्रीट करना पड़ेगा मेरे को. ओके, तो कैथोड माइनस एनोड करूंगा एंड बेसिकली इट इज गेटिंग सब्सट्रैक्टेड. ओके, कैथोड में से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, ये लो पॉजिटिव है, ये हाई पॉजिटिव वैल्यू है, सो दीज आर गेटिंग सब्सट्रैक्टेड. ओके, तो जो वैल्यू आएगा, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, दैट इज द सेल पोटेंशियल. ओके, उस तरह से इसको ट्रीट करना है, नॉट जस्ट ऐड करना है. जैसे अपन थर्मोडायनामिक्स में करते हैं ना, राइट? थर्मोडायनामिक्स में जैसे अपन करते हैं कि जैसे डेल्टा एच वैल्यूज ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, वैसा नहीं करना है यहाँ पे. अंडरस्टूड है? Yes, sir. Yes, sir. इसी के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, सो दिस इज अ सेकंड रिव्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और इसको आंसर करो जल्दी. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. ओके, देखो ये सेल दिया है, इसको बोला है कि नेगेटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब कि अगर मेरे को ई नॉट वैल्यू लेनी है तो दैट इज सम पॉजिटिव नंबर, इजंट इट? और इस सेल के लिए इज गिवन एज अ पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. इसके लिए भी मेरे को बोला है, लेकिन इसका मेरे को वैल्यू नहीं दिया है किसी का,
ये भी ई नॉट पॉजिटिव है, ठीक है। सो ये दो हाफ सेल है, ओके। इसको मैं अगर कनेक्ट करूंगा तो इसका जो वैल्यू है दैट इज वी डोंट नो इफ इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू और जीरो, ओके। कितना कम रहेगा। सो essentially we cannot say कि this will have what is going to be the correct, मतलब you know this is you cannot actually say that this is going to be anode or this is going to be cathode, isn't it? ये बता ही नहीं सकते अपन, क्योंकि हमको वैल्यूज नहीं दी है। ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसका वैल्यू कम है दैट इज गोइंग टू बी एनोड, जिसका वैल्यू ज्यादा है दैट इज गोइंग टू बी कैथोड। सो वी कैन नॉट एक्चुअली से, सो दिस इज इनकरेक्ट, ओके। सेकंड वन, ओके, दैट इज एज अ कैथोड। जब एनोड नहीं बता सकते तो कैथोड भी नहीं बता सकते, ऑलराइट। तो ऑब्वियसली दोनों भी नहीं बता सकते तो दोनों भी नहीं हो सकता। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। सो आई थिंक वी गोना स्टॉप हियर, ओके। कोई डाउट किसी चीज में नहीं है? ओके, देयर इज नो डाउट, you guys can leave, okay। We'll see you in the next one. Thank you very much. Bye bye.